Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, welcome once again to Noor School and College Mansehra. Dear student, in the previous lecture we have discussed about the electropositive and electronegative character as well as their variation in modern periodic table. Now let's recall the main points of previous lecture. So what is electropositive character? Electropositive character is the tendency of an element to lose electron from their outermost shell to form positive ion is called metallic character or electropositive character. And we know that a more electropositive element have more metallic character. And all alkali metal are electropositive in nature. All the non-metal have the ability to accept electron in their valence shell to form negative charge particle anion, and that character is actually called as electronegative character. We also see that the variation of metallic character across a period. As we see that metallic character decreases across a period from left to right, and on the other hand non-metallic character increases with increase in atomic number. And the third, we discussed the reason of metallic character from left to right and top to bottom. Why metallic character from left to right decreases and top to bottom increases? The simple reason is that when we are moving from left to right in a period, metallic character decreases because atomic size decreases and the atom can gain electron as compared to lose electron. While on the other hand, atomic size increases from top to bottom, due to which metallic character increases while non-metallic character decreases. Now in this lecture, student, we discuss about the properties of non-metal and their chemical reaction as well. So let's start. What is non-metal? Like metal, non-metal have also some characteristic property. Like non-metal are those substances which are non-conductor of heat and electricity. जितने भी हमारे पास मेटल्स होते थे वो हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे, जबकि नॉन मेटल हमारे पास क्या होंगे? दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये बिजली को या हीट को कंडक्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल आप वुड को देख लें, प्लास्टिक को देख लें, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती. सेकंड पॉइंट, दे आर नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल. ये हमारे पास मेलेबल भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते. मेलेबल लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जिसको आप प्रेशर डालकर किसी भी मेटल के ऊपर प्रेशर डालकर आप इसको बेंड कर सकते हैं, इसी तरह आप नॉन मेटल को नहीं कर सकते, जिसको हम कह रहे थे मेलेबल. वाइल नॉन मेटल आर आल्सो डक्टाइल. नॉन मेटल को आप अगर स्ट्रेच करें तो ये टूट जाएंगे, वीक हो जाएंगे और टूट जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये मेलेबल भी नहीं है और नॉन डक्टाइल हैं. वी कैन नॉट मेक वायर्स एंड शीट फ्रॉम नॉन मेटल. थर्ड, their oxide and hydroxide are acidic in nature. What is oxide? Oxide is basically the binary compound of non-metal with oxygen is called oxide. Their oxide and hydroxide, hydroxide is like NaOH. OH in this compound is hydroxide, sodium hydroxide. Okay, oxide and hydroxide are acidic in nature. Okay, नॉन मेटल के हमारे पास जो ऑक्साइड होंगे और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हमारे पास एसिडिक नेचर के होंगे. क्लियर? जबकि मेटल के हमारे पास ऑक्साइड कैसे होते थे? मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेसिक नेचर के होते थे. क्लियर? फोर्थ पॉइंट, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल हमारे पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं. ओके. Last point, non-metal when react with oxygen produces oxide. Okay, ये point इसी से मैच करते हैं. Okay, non-metal react with oxygen to produces oxide. Okay, and which dissolve in water to form acidic solution. जब कभी भी आप किसी भी नॉन मेटल को
नॉन मेटल को डिज़ोल्व करेंगे ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। और उस ऑक्साइड को अगर आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर? जो कि आपके पास ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, रेड कर लेंगे। ओके, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जब कभी भी कंबाइन होंगे तो वो ऑक्साइड बनाएंगे, जिसको आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो सोल्यूशन आपके पास एसिडिक आएगा। और एसिडिक सोल्यूशन आपको पता है कि ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड कर लेते हैं। ओके, ये जो रिएक्शन लिखी गई है ये मेटल के लिए लिखी गई, ये नॉन मेटल की नहीं है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड को जब पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके सोल्यूशन क्या आते हैं, इसके सोल्यूशन बेसिक आता है। NaOH इज बेसिक सोल्यूशन। ओके, वेल जबकि हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड, यहाँ इस रिएक्शन से आप देख सकते हैं ये नॉन मेटल है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कर दिए तो आपके पास कार्बोनिक एसिड जो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं और सोल्यूशन आपके पास एसिडिक सोल्यूशन आ जाते हैं। ओके, जितने भी हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ऑक्साइड बना लेते हैं और ऑक्साइड जब वाटर से ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन की फॉर्मेशन करवाते हैं। और एसिडिक सोल्यूशन क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को हमारे पास रेड कर देते हैं। ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी थी नॉन मेटल की। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे देखते हैं, नॉन मेटल की पोजीशन हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ है, कौन कौन से ग्रुप नॉन मेटल्स हैं, कौन से हमारे पास गैसेस हैं और कौन से सॉलिड और कौन से लिक्विड फॉर्म में हैं। तो अगर हम पहले ग्रुप की बात करते हैं तो पहले ग्रुप में हमारे पास लिथियम सोडियम पोटेशियम वाली जो ग्रुप है, इसमें हमारे पास जो टॉप पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इज़ नॉन मेटल। ओके, सो फ्रॉम ग्रुप 1 हाइड्रोजन इज़ नॉन मेटल। ओके, नेक्स्ट बोरान फ्रॉम ग्रुप 3 इज़ आल्सो नॉन मेटल। ग्रुप 3 पे आप जाएंगे, बोरान फैमिली जिसको हम कहते हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट बोरान जो हमारे पास है वो नॉन मेटल है। इसी तरह कार्बन और सिलिकॉन हमारे पास ग्रुप 4 में हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल में आ जाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे पास ग्रुप 5 में नॉन मेटल हैं। ओके, इसके अलावा ग्रुप 6, 7 और 8 के तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ओके, ये थी हमारे पास पोजीशन। और अगर हम इनकी नंबरिंग बताएं कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट, 118 एलिमेंट में कितने एलिमेंट नॉन मेटल है, तो उसको 27 एलिमेंट हमारे पास नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले हमने नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके बाद हमने इसकी पोजीशन की बात की कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ग्रुप में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं और उनकी नंबरिंग देखी कि कितने नंबर में होते हैं। नेक्स्ट बात, स्टूडेंट कौन से एलिमेंट हमारे पास नॉन मेटल में सॉलिड हैं, कौन से लिक्विड हैं और कौन से गैसेस हैं। फर्स्ट, गैसेस नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो गैसेस में हमारे पास आर्गन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं और जो कि सारे के सारे नॉन मेटल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सॉलिड नॉन मेटल की, तो सॉलिड नॉन मेटल में कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सेलेनियम, सिलिकॉन एंड सल्फर, ये कुछ एलिमेंट हैं हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं लेकिन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह एक ही हमारे पास नॉन मेटल है जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। ओके, दैट इज़ ब्रोमीन। अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा वाहिद एलिमेंट है जो हमारे पास, वो कौन सा वाहिद नॉन मेटल है जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सो योर आंसर शुड बी ब्रोमीन। ओके, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर gaseous form, some of which are solid form, while only one is in liquid state and that is bromine. नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे नॉन मेटल की एग्जैक्ट डेफिनेशन। ये तो लास्ट अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब आते हैं
साइंटिस्ट ने नॉन मेटल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हवाले से इसकी जो मेन डेफिनेशन बताई है वो क्या है? तो द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल, the most acceptable and modern definition of non-metal is a non-metal is an element which gain an electron and form an ion. Okay? अगर हम नॉन मेटल की मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास नॉन मेटल हर वो सब्सटेंस होते हैं या हर वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एन आयन बना सकते हैं. ओके? All those elements which have the ability to gain electron to form anion is called non-metal. Okay? For example, chlorine is non-metal because they gain electron to form chloride ion. Okay? You see that chlorine, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दो एटम है तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 2 क्लोराइड आयन हमारे पास बन जाते हैं. सो हियर क्लोरीन इज नॉन मेटल बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन. ओके? दिस फॉलो द डेफिनेशंस ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सो दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. ओके? जितने भी हमारे पास नॉन मेटल होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आर दोज एलिमेंट विच हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके? जितने भी हमारे पास नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, इसलिए हम इसको बोलते हैं. ये जितने भी हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं, जबकि मेटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं. क्लियर? सो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल. यू शुड मेमोराइज दिस. अ नॉन मेटल इज वन विच गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन. ओके? नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल. अभी तक हमने मेटल्स पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में, फिर आज के लेक्चर में हमने नॉन मेटल्स पढ़ ली, उसकी पोजीशन पढ़ ली और उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा. अब आते हैं इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में. तो कुछ पॉइंट तो मेटल्स के बारे में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ भी लिए हैं, चलिए उसको भी दोबारा रिवाइज, कुछ पॉइंट रिवाइज हो जाते हैं, कुछ न्यू पॉइंट भी आपको मिलेंगे. तो मेटल्स की पहले प्रॉपर्टीज़ को फिर देख लेते हैं कि मेटल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो नॉन मेटल से मेटल को डिफरेंशिएट करवाते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ऑल मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड दे आर रिड्यूसिंग एजेंट. ओके? जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. जब कभी भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन को देगा. ओके? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, देगा. डोनर मीन देने वाला. और आपको पता है जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, मीन टू से ऑल दो स्पीशीज विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म they undergo oxidation and the species which undergo oxidation is called reducing agent. ओके? जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं. सो इट्स मीन दैट ऑल मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट, दे बिकम पॉजिटिव चार्ज आयन इन सॉल्यूशन. जब कभी भी आप किसी भी लेट सपोज सब्सटेंस को, साल्ट को पानी के अंदर आप डालते हैं, तो साल्ट को पानी के अंदर, NaCl को आप पानी के अंदर डालते हैं तो दो चार्ज के अंदर NaCl कन्वर्ट होता है, एक सोडियम आयन लेट सपोज एंड क्लोराइड आयन. तो क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव होते हैं और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होते हैं. इट्स मीन दैट जितने भी मेटल्स होते हैं वो पानी के अंदर या सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस करते हैं. ओके? लाइक व्हेन वी डिसॉल्व NaCl इन वाटर दे प्रोड्यूस Na positive and Na positive is what? Metal. Okay? Some metal can replace hydrogen from acid to salt. कुछ मेटल हमारे पास ऐसे होते हैं जो एसिड से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं. ओके? कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन को एसिड से निकालते हैं. ओके? एसिड क्या होते हैं? एसिड उन चीज़ों को कहते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता हो. ओके? कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एसिड से हाइड्रोजन आयन को निकाल सकते हैं. ओके?
हाइड्रोजन आयन को निकालेंगे और साल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, मैं रिएक्शन लिखवा देता हूँ इसकी, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एक सोडियम जब भी आपके पास HCl के साथ मिलेगा, मतलब एसिड के साथ मिलेगा, तो एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देगा और क्लोरीन को यहाँ से कैप्चर कर लेगा। NaCl बन जाते हैं, साल्ट बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। यही बात लिखी गई है कि कुछ मेटल हमारे पास ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके साल्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट 4 पॉइंट, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जितने भी मेटल होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं? डिसॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म अल्कली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और जितने भी हमारे पास बेसिक ऑक्साइड, वो बेसिक ऑक्साइड जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं, वो पानी के अंदर क्या बनाती हैं? अल्कली बना लेती हैं। ओके, पहली बात, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। और अगर इनके बेसिक ऑक्साइड पानी के अंदर डिसॉल्व होती हैं तो ये क्या बनाती हैं? पानी के अंदर अल्कली बना लेती हैं। मैं रिएक्शन, इसकी भी रिएक्शन अभी ज़रा कुछ नेक्स्ट पेज पे मैंने बताई थी, चलिए फिर देख लेते हैं। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि मेटल का ऑक्साइड बन गया, मेटल के ऑक्साइड को पानी के अंदर डाल दिया तो NaOH, ये मेरे पास पानी के अंदर क्या बन गया? अल्कली बन गया। ओके, दिस इज कॉल्ड अल्कली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, दे फॉर्म आयनिक क्लोराइड। जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं इनके क्लोराइड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं। आपने देखा होगा NaCl में मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन होते हैं क्लोराइड के साथ, जब भी ये कंबाइन होते हैं तो इनके बांड कौन सा बनते हैं? NaCl के बीच में कौन सा बांड होते हैं? आयनिक बांड होते हैं ना। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल जब कभी भी क्लोराइड के साथ मिलेगा तो बांड कौन सा बनाएगा? आयनिक। ओके, नेक्स्ट, दे डू नॉट कंबाइन इजीली विथ हाइड्रोजन, फ्यू हाइड्राइड फॉर्म आर आयनिक। जितने भी मेटल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में अगर ये कंबाइन होते हैं तो ये हाइड्राइड बनाते हैं। ओके, लाइक NaH, LiH, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, इसी तरह के हाइड्राइड ये फॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होते। 7, हीटली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़कर। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर electron accepted during chemical reaction and they are oxidizing agent. ओके, जितने भी नॉन मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और हमने कहा था ना कि all those substances which can gain electron they form reduction, and all those substances which undergo reduction are basically act as oxidizing agent. So that's why we can say that all non-metal act as a oxidizing agent. Second point, they become negative charge species in solution. नॉन मेटल हमेशा आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल NaCl को मैं पानी के अंदर डालता हूँ तो NaCl के अंदर एक पार्ट मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो NaCl के अंदर क्लोराइड नॉन मेटल है, तो क्लोराइड हमेशा नेगेटिव चार्ज स्पीशीज सॉल्यूशन के अंदर बनाता है। ओके, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास नॉन मेटल सॉल्यूशन के अंदर क्या बनाते हैं? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्रिएट करते हैं। थर्ड, नॉन मेटल कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन को कभी भी रिप्लेस नहीं करते एसिड से। ओके, हाइड्रोजन को हमेशा मेटल ही रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। जब कभी भी हमारे पास नॉन मेटल एसिड के साथ कंबाइन होगा, जब कभी भी हमारे पास नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड। ये हमारे पास ऑक्साइड है। ओके, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ऑक्साइड, ये इनके जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं?
एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जब कभी भी ये पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, ये कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। लाइक कार्बोनिक एसिड यहाँ बन रहा है। इसी तरह लेट्स सपोज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो NO2 बनाते हैं, और NO2 हमारे पास वाटर से ट्रीट होता है तो नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करवाता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और वो पानी के साथ रिएक्ट होकर हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन की फॉर्मेशन करवाते हैं। उसके बाद फिफ्थ, दे आर कवलेंट क्लोराइड। इनके जो क्लोराइड के साथ बांड बनते हैं वो कवलेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, दे कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल कवलेंट हाइड्राइड। हमारे पास बहुत सारे नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ कवलेंट बांड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कवलेंट हाइड्राइड। और लास्ट वन, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो डी स्टूडेंट, ये थे हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल के कुछ ऐसे पॉइंट जो एक दूसरे को आपस में डिफ्रेंशिएट करवा रहे थे। तो स्टूडेंट, आपने इन सब पॉइंट को याद रखना है। ये आपके पेपर्स के लिए ये टेबल की फॉर्म में आपके पेपर में आता है कि आप नॉन मेटल और मेटल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करें, तो आपको ये 7 पॉइंट ऑलमोस्ट याद होने चाहिए। एक के याद करें, दूसरे के आपको इजीली याद हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट को रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, कि मेटल्स की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन, नॉन मेटल आर दो सब्सटेंस विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, they are neither malleable nor ductile. Third, their oxide and hydroxide are acidic in nature. Fourth one, non-metal exist in all 3 states of matter at room temperature. Fifth one, non-metal which react with oxygen produces oxide which dissolve in water form acidic solution. Next, हमने position of non-metal की बात की थी periodic table के अंदर। In periodic table, in group 1 hydrogen is non-metal, boron from group 3 is non-metal, carbon and silicon from group 4 is non-metal, nitrogen and phosphorus from group 5 is non-metal, while all the elements of group 6, 7 and 8 are non-metals. नेक्स्ट हमने बात की थी स्टूडेंट स्टेट ऑफ नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। हमारे पास नॉन मेटल 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। गैसेस में हमारे पास आर्गन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड रेडॉन। वाइल सॉलिड स्टेट में हमारे पास कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सेलेनियम, सिलिकॉन एंड सल्फर एग्जिस्ट करते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में ओनली ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिस्कस की। तो नॉन मेटल्स और मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल नॉन मेटल आर electron acceptor during chemical reaction and they are oxidizing agent. And non-metal cannot replace hydrogen from acid, while metal can replace hydrogen from acid to form salt. Next, non-metal form acidic oxide which dissolve in water to form acid, while metal form basic oxide and the soluble basic oxide form alkali when dissolved in water. Next, the last main point we discussed that they form covalent hydride. Non-metal form covalent hydride while metal form cannot form metal form ionic chlorides. And the last point is metal are good conductor of heat and electricity while non-metal are poor conductor of heat and electricity. These are the main points of today's lecture, student. Now you should write the whole lecture on your worksheet. This is your homework. Thanks. Allah Hafiz.